Hello guys, welcome back to another video of Indian polity Lakshmikant, and we are continuing our chapter, that is chapter 5 of Indian polity. So let's begin. Exchange of territories with Bangladesh. Our next topic is the 100th Constitutional Amendment Act 2015 was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the governments of India and Bangladesh. Under this deal, India transferred 100 enclaves to Bangladesh, while Bangladesh transferred 51 enclaves to India. In addition, the deal also involved the transfer of adverse possessions and the demarcation of a 6.1 kilometer undemarcated border stretch. For these three purposes, the amendment modified the provisions relating to the territories of four states, Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura, in the first schedule of the Constitution. ओके चलो समझते हैं इसको। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, उसने इंडिया को सर्टन टेरिटरीज़ को एक्वायर करने का राइट दिया और कुछ टेरिटरीज़ को ट्रांसफ़र करने का टू बांग्लादेश। ठीक है, जो एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इस प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया ने 111 एनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफ़र हुई। अब एनक्लेव्स क्या होता है, मैंने लिख रखा है फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, अ पोर्शन ऑफ territory surrounded by a larger territory whose inhabitants are culturally ethnically distinct। क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट, सॉरी। एक टेरिटरी का एक छोटा पोर्शन टेरिटरी का किसी बड़ी टेरिटरी से सराउंडेड है, मतलब कोई बड़ा सा जगह है, उसमें छोटी जगह में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि कल्चरली और एथनिकली डिफरेंट हैं उस सराउंडिंग, जो बड़ा सराउंडिंग एरिया उससे। तो इस टाइप के एनक्लेव्स को इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स को ट्रांसफ़र किया अंडर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और बांग्लादेश ने 51। ठीक है। India and Bangladesh have a common land boundary of approximately 4,096.7 kilometers. The India-East Pakistan land boundary was determined as per the Radcliffe Award of 1947. इंडिया और बांग्लादेश का कॉमन बाउंड्री कितनी है, 4,096.7 किलोमीटर्स, और द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिटरमाइंड एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, और इंडिया ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ बांग्लादेश, इसको भी डिटरमाइन किया गया था। मतलब पूरा एरिया, ये वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया और ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया, मतलब पूरा पाकिस्तान बनता था। लेकिन जो मतलब जो रेड क्लिफ लाइन है, ऐसा मतलब डायरेक्ट मैसेज आता है कि अगर रेड क्लिफ लाइन की बात की जा रही है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसकी बात की जा रही है। लेकिन यही जो रेड क्लिफ लाइन थी वो इट वाज अ सिंबल ऑफ डिवीज़न बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान एज वेल एज ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पहले जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान मतलब का ही पार्ट था। ठीक है, मतलब टोटल ये पाकिस्तानी था पूरा। तो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो लैंड बाउंड्री डिटरमाइन हुई थी वो रेडक्लिफ अवार्ड 1947 से डिटरमाइन हुई थी। डिस्प्यूट्स अरोज आउट ऑफ सम प्रोविजंस इन द रेडक्लिफ अवार्ड विच वर सॉट टू बी रिजॉल्व थ्रू द बैग अवार्ड ऑफ 1950। I don't know it's bag or bag. Another effort was made to settle these disputes by the Nehru-Noon Agreement of 1958. However, the issue relating to division of Berubari Union was challenged before the Supreme Court. To comply with the opinion rendered by the Supreme Court, the Constitution 9th Amendment Act 1960 was passed by the Parliament. Due to the continuous litigation and other political developments at that time, the Constitution 9th Amendment Act 1960 could not be notified in respect of territories in former East Pakistan, presently Bangladesh. Not much needed to understand. So let's begin another topic: evolution of states and union territories. This topic is very very important, I would say, or 100% important, because you may find definitely one or two questions in state services, state PCS examinations, or in UPSC as well. So let's begin. Integration of princely states. At the time of independence, India comprised two categories of political units, namely the British provinces and the princely states. आज़ादी के टाइम पे जो इंडियन टेरिटरीज़ थी वो दो टाइप की थी। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जिन पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल में थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट जो कि मतलब नेटिव प्रिंसेस जिन पे रूल करते थे, लेकिन ये जो मतलब देवर सब्जेक्ट टू दी पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो
ओवरऑल अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश क्राउन की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन उन पर जो रूलर्स थे वो नेटिव प्रिंसेस थे, ठीक है, राजा महाराजा। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गिव 3 ऑप्शंस टू द प्रिंसली स्टेट्स विच जॉइनिंग इंडिया, जॉइनिंग पाकिस्तान, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। 1940 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 2 डोमिनियंस को बनाया, इंडिया पाकिस्तान, और ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो मतलब इंडिया मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। अब ऑफ द 552 princely states situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India and the remaining 3 Hyderabad, Junagadh and Jammu Kashmir refused to join India. However, in course of time they were also integrated with India. Hyderabad by means of police action, Junagadh by means of referendum and Kashmir by the instrument of accession. जिसमें से 552 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 रिमेनिंग जो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये इनका जो इंडिया में इंटीग्रेशन था थोड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है। हैदराबाद जो था उसको पुलिस एक्शन के जरिए इंडिया में लाया गया, जूनागढ़ को रेफरेंडम वोट डलवा के, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ वहाँ के जो राजा थे, किंग थे, मतलब रूलर उस टाइम पे 1947 के टाइम पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प ली थी। वो डिफरेंट टॉपिक है, आई विल डिस्कस लेटर। मतलब घुसपैठियों को भगाने में मदद ली थी इंडियन गवर्नमेंट से, और उसके बदले में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। मतलब हमने इंडिया में एक तरीके से उनको शामिल कराने के लिए एक पेपर होता था जिसको साइन करते थे, ठीक है, जो भी प्रिंसली स्टेट्स जब इंडिया में मिलते थे। धर कमीशन एंड JVP कमेटी। The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly for reorganization of states on linguistic basis. Accordingly, in June 1948, the government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility of this. The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. धर कमीशन और JVP कमेटी। 1948 जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अपॉइंट किया, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, SK धर, ताकि देखा जा सके कि मतलब किस बेसिस पे स्टेट्स को मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जा सकता है नहीं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1948 में, रिकमेंड किया स्टेट्स को का रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर, ओके। फिर लेकिन इससे जो है this created much resentment and led to the appointment of another linguistic provinces committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh. लेकिन ये जो उसने मतलब रिपोर्ट दी उससे ज़्यादा कोई सेटिस्फाइड नहीं था, तो दूसरा कमेटी बिठाई गई। इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, एंड पत्ताभी सीतारमैया। इसीलिए इसको कहा जाता है JVP कमेटी। J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P स्टैंड्स फॉर पत्ताभी सीतारमैया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, JVP कमेटी। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949, फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसने भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 1949 में रिपोर्ट प्रेजेंट करी। अब एक तो इन 1953 क्या होता है, the government of India was forced to create the first linguistic state known as Andhra state by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. 1953 में मतलब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें पोटी श्री रामलू हैं, कांग्रेस लीडर थे। इनकी डेथ भी हो जाती है हंगर स्ट्राइक की वजह से। 56 डे की हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे ये, ताकि आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक पहला जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट है उसको बनाने की मंजूरी देनी पड़ी 1953 में। जो मद्रास है वहाँ से कुछ एरियाज़ को ले लिया गया और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को, और नाम दिया गया आंध्रा स्टेट। वर्ड में क्वेश्चन आता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो आंध्र प्रदेश वुड बी आंसर।